Today we will discuss galvanic cell. We know in a galvanic cell the energy produced by the spontaneous chemical reaction is utilized in providing electricity which is used for various works. We have discussed in case of Daniell cell we have zinc together with copper electrodes which are dipped in their metal salt solution, which are joined internally by the salt bridge, which is meant for the migration of ion, and externally by a wire, which is meant for the flow of electron, due to which an electrical current is flows. Today we will discuss the half cell reaction, and together we will discuss them redox reaction. Most of the content of this class we have already discussed. Let us discuss galvanic cell. Galvanic cell. In this type of cell, the energy produced from spontaneous chemical reaction is used in the form of energy, or we can say electrical energy. We have discussed for Daniell cell. That is, we have here, we have zinc rod here. This rod is made up of zinc. And we have another container in which we have copper rod. This zinc, we know this is known as anode. For sign convention, we have to draw the anode on the left hand side. Anode, we will discuss, it is having negative charge and oxidation takes place here. Cathode, this one is cathode, it is positively charged and reduction occur here. We will discuss why this is happens so. Why the charge is positive, why reduction, why copper, we will discuss. Internally, these two cells are joined with a salt bridge, which is meant for the migration of ions. Here what we have? We have the metal salt solution. We have this one is the what we have CuSO4, and here we have ZnSO4. What are these? These are electrolyte. Electrolyte, we know those which conduct electricity in the form of aqueous or molten state is known as electrolyte. When we join them externally, then what we see here? Let us see what is happening here. Here what we have? Zinc. Then zinc will tend to dissolve in the solution. It means zinc will move inside the solution by forming Zn2+. And what is here? Here we have two electrons. We know the charge on the electron is negative, and we know these electrons are residing in the anode. That's why the charge on the anode is negative. This is how we can define the electrode potential. It means electrode potential you can define. Electrode potential we can define
that the potential difference we see here, the electrolyte is positively charged and the anode is negatively charged. The potential difference between the electrodes and electrolyte is known as electrode potential. तो हमने देखा इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स थे, नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव लिखा है। तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यहां भी कह सकते हैं, लेट अस सी। यहां क्या है हमारे पास, यहां Cu2+ है और SO4- है। तो Cu2+ जो है व्हाट इट विल डू, इट विल गेट डिपोजिटेड हियर। कैसे डिपोजिट होगा, ये Copper2+ जो है इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये रिड्यूस होगा। जब ये न्यूट्रल है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया गया तो इससे किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। हियर व्हाट वी हैव, हियर क्या है, यहाँ पे यहां हमारे पास जो जिंक है, ये जिंक वो क्या कर रहा है, वो जिंक 2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, एनोड पे। दूसरा हम देखेंगे यहां, और ये जो हमारा जो जिंक है, ये जो एनोड है वो निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि जब जिंक सॉल्यूशन में जा रहा है तो इस पे चार्ज आ रहा है नेगेटिव, इसलिए हम कहेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज है। यहाँ Copper2+ है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जो इलेक्ट्रॉन किसी चीज से निकालते हैं उससे पॉजिटिवली चार्ज आता है, तो कैथोड क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिवली चार्ज। ऑन द अदर हैंड दूसरी जगह क्या होगा, हमारे पास कॉपर होगा और Copper2+ में होगा, यहाँ वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड फॉर्म्स Cu। तो व्हाट इज दिस इज नोन एज रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन कहां होगा, एनोड पे, और ये कहां होगा, कैथोड पे। वन न्यू टर्म यू हैव दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हाफ सेल में जितनी भी स्पेसिस है, ये हाफ सेल कहेंगे इसको बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हाफ सेल में सारी जो स्पीसीज हैं उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मींस द पोटेंशियल at the electrode when the concentration of all the species in half cell is unity। तो हम ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मींस अगर हाफ सेल में जितनी भी स्पीसीज हैं उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल इट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 electrodes of a cell, that is the potential difference between the anode and the cathode is known as cell potential,
It is measured in volt. The next we will discuss cell potential. It means it is the potential difference between the two electrodes, that is anode and cathode of a cell. It is measured in volt. सेल पोटेंशियल क्या है भाई? जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल हमने डिस्कस कर लिए हैं। दो इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल का डिफरेंस को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल जो है हम मेजर करते हैं वो वोल्ट में है। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ क्या है देखेंगे, ईएमएफ। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो सेल है उसका भी अपना रेजिस्टेंस होता है। जब सेल ऑपरेट होगा, जब करंट फ्लो करेगी, तो क्या होगा, ईएमएफ से हमें कम वोल्टेज मिलेगा। क्यों मिलेगा कम वोल्टेज? क्योंकि सेल का अपना भी रेजिस्टेंस है, और सेल के रेजिस्टेंस के कारण, उसके सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण ईएमएफ उसके सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो पाएगा। तो ईएमएफ क्या है? EMF is the potential difference between the electrodes when no current is drawn from the cell. जब करंट नहीं बहेगी, नहीं निकली जाएगी, नहीं पाएंगे हम सेल से, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑपरेट नहीं होगा, और इसलिए सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इट मीन्स EMF, it is the potential difference between the electrodes of a cell when no current is drawn from the cell. Why? हमने बात किया है, वंस मोर मैं बताता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिलेटिवली कंपैरेटिवली सेम है। फिर डिफरेंस क्या है इसमें? हम जानते हैं कि हर एक सेल के अंदर उनका अपना रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं सेल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। जब सेल के अंदर अपना रेजिस्टेंस है तो क्या करेंगे, सेल के अपने रेजिस्टेंस के कारण भी एक छोटा सा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब जो सेल से रेजिस्टेंस ना होने पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा उसको ईएमएफ कहेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस होता है तो जो हमें वोल्ट मिलता है, ईएमएफ मिलता है, वो कम मिलता है, क्योंकि सेल के रेजिस्टेंस के कारण उतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो उसको हम वोल्ट कहते हैं। और जब करंट ना मिले तो उसको बोलते हैं ईएमएफ। नेक्स्ट टू दैट वी विल नो E of the cell, E cell. It means the potential difference of the cell is equals to ER minus EL. ER मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, एंड EL मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल हैं, और लेट अस नो हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेल रिएक्शन। लेट अस have a redox reaction, that is
copper solid plus Ag plus, that will be aqueous. When it reacts, it forms Cu2 plus aqueous plus Ag solid. This is a cell reaction we have. We can also separate it into half cell reaction. हाफ सेल रिएक्शन में कैसे, ये कॉपर जो है वो कॉपर 2 प्लस में गया है और कॉपर सॉलिड कॉपर 2 प्लस में जाना, इसको दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और ये इसमें जाना दैट इज नोन एज रिडक्शन. वाई? बिकॉज यहाँ प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन लिया है तो Ag में गया है, तो इलेक्ट्रॉन का अगेन रिडक्शन. इट मीन्स वी कैन राइट एट एनोड. एनोड पे क्या होगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. Oxidation, we can write. We can split this reaction, complete reaction, to half cell reaction. At anode, that is oxidation, what will happen? Copper solid, it undergoes into Cu2 plus 2 electron. Here we have Aq. The next, at cathode, that is known as reduction. That is what we have, Ag plus, that will be aqueous. It undergoes formation of Ag solid. Here it gains 2 electron. 2 electron, then we have 2 Ag. It forms Ag solid we have. This one is the anode oxidation half reaction. This one is the reduction half reaction. How we will represent it? In order to represent it, first of all we will write the oxidation half, then we will write the reduction half by a double line. Let us write it. The first one you have Cu into Cu2 plus. You can write Cu solid, we will mention the state, to Cu2 plus aqueous. Double line. This is known as oxidation, and we have not, we will write the cytometric coefficient Ag plus, that will be aqueous, to Ag, that is solid. This one is the reduction, this one is the oxidation. This is the way how to represent a cell reaction. If we want to calculate the EMF of the cell or the cell potential, then we should write E cell is equals to ER minus EL. Putting their values, what we have, or we can write E cell is equals to ER. R means reduction. This one, it means we have Cu2 plus. The next one, we will write ER means reduction. It means Ag plus 2Ag minus E, that is oxidation. Oxidation, it means we have this one, Cu2 plus 2C. This minus sign indicates what is the conversion, Cu plus Cu to Cu2 plus oxidation. And what we are writing here, Cu2 plus to Cu, but we have minus, it means we can invert it. Here we have Cu to Cu2 plus, that is Cu to Cu2 plus, it is known as oxidation. But what we have written here, reduction, but minus sign indicates its oxidation. तो हमने क्या जाना, हमने जाना सेल पोटेंशियल को जानने के लिए इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को माइनस करेंगे, और ER मीन्स रिडक्शन हाफ सेल और EL मीन्स होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल. तो रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करेंगे तो हमको सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा. सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, हमने इसको स्प्लिट कर दिया. कैसे? ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में. तो ऑक्सीडेशन हम देख रहे हैं कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और Ag प्लस जो है Ag में जा रहा है, तो ये रिडक्शन है. तो ऑक्सीडेशन में हमने लिख दिया कॉपर टू गिव Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड रिडक्शन में क्या होगा, Ag2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में जा रहा है.
गैसेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, डबल लाइन, और फिर लिखेंगे रिडक्शन हाफ। वहां पे हम स्टेट को भी मेंशन करते रहेंगे। तो यहाँ क्या है देखिए, कॉपर 2+ में जा रहा है, तो कॉपर 2+ में। कॉपर जब प्योर होगा तो सॉलिड स्टेट में, 2+ होगा तो सॉल्ट में होगा तो एक्वस करेंगे। फिर यहाँ क्या है Ag+, तो Ag+ हमने लिखा है और Ag+ एक्वस होगा, और यहाँ इसमें जा रहा है रिड्यूस होके Ag सॉलिड में जा रहा है। अब हमको निकालना है व्हाट इज द सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल हमको पता है E सेल इक्वल्स टू E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, यू कह लो कि ER - EL। तो रिडक्शन क्या है हमारे पास भाई, रिडक्शन जो है वो Ag+ से Ag में जाना, तो हमने लिख दिया EAg+ टू Ag। फिर हमें लिखना क्या चाहिए था, Cu+ टू Cu2+, लेकिन यहाँ माइनस साइन है, तो हम अगर लिखते Cu2 और अगर माइनस साइन लगा Cu2 लेकिन हमने क्या लिखा है Cu2+ टू Cu, लेकिन माइनस साइन लगाने से ये इसके सिनोनिमस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं। यहाँ माइनस से हमको पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीडेशन वाला है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल।